Hello everyone, welcome back to the channel. So today I am going to discuss very important topic which is related to Indian budget. So who announced the budget the maximum number of times? So in this video we will cover everything about the Indian budget, past, present, constitutional provision in a simple exam oriented way. So let's start. So first of all, what is the budget? The budget is the annual financial statement of the government of India. तो बजट क्या होता है? एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इट शोज ये क्या क्या दिखाता है? द एस्टिमेटेड इनकम ऑफ द गवर्नमेंट एंड द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर. मतलब एस्टिमेटेड इनकम गवर्नमेंट की दिखाता है और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल to 31 March. So the budget is prepared by the Ministry of Finance. Constitutional provision of budget. The budget is mentioned under Article 112 of the Indian Constitution. तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 वो बात करता है बजट के बारे में. सो आर्टिकल 112 यूजेस द टर्म एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट द वर्ड बजट. तो हमारे जो आर्टिकल 112 है उसमें जो वर्ड यूज़ हुआ है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट द बजट. The important budget related articles are Article 113 Voting on Demand for Grants, Article 114 Appropriation Bill, Article 115 Supplementary and Access Grants, and Article 116 Vote on Account, and Article 117 Finance Bill. Who present the budget? The budget is presented by the Finance Minister of India. तो जब बजट होता है वो किससे कौन प्रेजेंट करता है? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया. इट इज़ प्रेजेंटेड इन लोकसभा. ये लोकसभा में प्रेजेंट होता है. द राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन अ बजट. इट कैन ओनली डिस्कस इट. मतलब राज्यसभा वोट नहीं कर सकता है बजट में, बस केवल डिस्कस कर सकता है. हिस्ट्री ऑफ इंडियन बजट. फर्स्ट बजट इन इंडिया. द फर्स्ट बजट इन इंडिया वॉज प्रेजेंटेड इन 1960. तो जो फर्स्ट बजट इंडिया में प्रेजेंट हुआ था वो 1960 में हुआ था. इट वॉज प्रेजेंटेड बाय जेम्स विल्सन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. तो फर्स्ट जो बजट पेश हुआ था वो हुआ था जेम्स विल्सन के थ्रू. ही वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मेंबर ऑफ वॉइस रॉयस काउंसिल. मतलब वो जो थे जेम्स विल्सन वो फर्स्ट फाइनेंस मेंबर थे वॉइस रॉय काउंसिल के. फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. तो फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कब आया था? तो फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज प्रेजेंटेड ऑन 26 नवंबर 1947. तो हमारा जो आफ्टर इंडिपेंडेंट जो फर्स्ट बजट आया था वो आया था हमारा 26 नवंबर 1947 में. और ये किसके थ्रू प्रेजेंट हुआ था? इट वॉज प्रेजेंटेड बाय R.K. Shanmugam Chetty, India's first finance minister. Who announced the most budget? This is very popular UPSC question. Morarji Desai presented the budget 10 times, the highest ever. तो जो मोरारजी देसाई थे उन्होंने सबसे ज़्यादा बार बजट को पेश किया है वो जो 10 बार. पी चिदम्बरम प्रेजेंटेड 9 बजट्स. मतलब जो हमारे पी चिदम्बरम थे फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने 9 टाइम्स बजट को प्रेजेंट किया है. प्रणब मुखर्जी प्रेजेंटेड 8 बजट्स. रिमेंबर दिस रैंकिंग क्लियरली. Types of budget. General budget, the main annual budget. Interim budget presented before general election, no major policy announcement. Or third, supplementary budget when extra funds are required. रेलवे बजट इम्पॉर्टेंट चेंज. रेलवे बजट स्टार्टेड इन 1924. तो रेलवे बजट कब स्टार्ट हुआ था? 1924 में. इट वॉज मर्ज विद द जनरल बजट इन 2017. और इसको मर्ज कर दिया गया था विद जनरल बजट इन 2017. रीज़न क्या था? बेटर प्लानिंग और end of colonial era practice. Date and time of budget presentation. Earlier presented on a last working day of February, which is at 5 p.m. or now since 2017 presented on 1st February at 11 a.m. Reason: allow ministries to use funds from 1st April itself. Charged versus voted expenditure. Charged expenditure not voted by parliament. Example: president's salary, judges' salaries, interest on government debt. Or voted expenditure require approval of Lok Sabha, form the major part of government spending.
Vote on account mentioned under Article 116 allow government to spend money temporarily, usually for 2 months, used during election or transition period. बजट पासिंग प्रोसीजर, तो बजट को कैसे पास किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट, बजट प्रिपेयर्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। सेकंड, अप्रूव बाय कैबिनेट। थर्ड, प्रेजेंटेड इन लोकसभा। फोर्थ, जनरल डिस्कशन। फिफ्थ, स्टैंडिंग कमेटी रिव्यू। सिक्स, वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। सेवन, पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल एंड फाइनेंस बिल। एट, प्रेसिडेंट एसेंट। Budget prepared by financial year 2026-27 by Finance Minister Nirmala Sitharaman, her 9th budget and the 15th of the Modi government। तो बजट जो प्रेजेंट हुआ है फॉर 2026-27 किसके द्वारा, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, वो उनका 9th बजट था, और हमारी प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो मोदी गवर्नमेंट उनका 15th बजट था। सेकेंड, टोटल बजट आउटले 53.5 लाख करोड़ विथ फोकस ऑन ग्रोथ एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। जो टोटल बजट आउटले था वो 53 लाख करोड़ का था, जिसपे मेनली फोकस था हमारा ग्रोथ और इंक्लूसिव डेवलपमेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज टू ₹12.2 लाख करोड़ एम्फसाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जॉब क्रिएशन। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको इंक्रीज कर दिया गया है, अब हुआ है 12.2 लाख करोड़, जो एम्फसाइज करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब क्रिएशन में। फोर्थ पॉइंट, फिजिकल डेफिसिट टारगेट केप्ट अराउंड 4.3 to 4.4% ऑफ GDP, कॉन्टिन्यूइंग फिजिकल डिसिप्लिन। जो फिजिकल डेफिसिट टारगेट है उसको कितना रखा गया है, 4.3 to 4.4% ऑफ GDP, कॉन्टिन्यूइंग फिजिकल डिसिप्लिन। 5 पॉइंट, नो चेंज इन कोर इनकम टैक्स स्लैब, मतलब इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी चेंज नहीं किया गया है, बट अ न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2026। बट जो हमारा न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 है वो हमारा इफेक्ट में आएगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। 6.7 न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स अनाउंस टू बूस्ट कनेक्टिविटी एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। तो 7 न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को अनाउंस किया गया है जो बूस्ट करेगा कनेक्टिविटी और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। 7 फोकस ऑन हेल्थ केयर एंड मेडिसिन, कैंसर ड्रग्स टू बी मेड चीपर एंड सपोर्ट फॉर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे हेल्थ केयर सेक्टर और मेडिसिन में क्या हुआ है, कैंसर की जो ड्रग्स हैं उनको और चीपर बना दिया गया है, मतलब सस्ती कर दी गई हैं, जो सपोर्ट करेगा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को। 8 पॉइंट, सपोर्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर पुश एंड स्ट्रैटेजिक सेक्टर इनिशिएटिव। तो जो इस सपोर्ट हमारा हुआ है फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी में इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर पुश और स्ट्रैटेजिक सेक्टर इनिशिएटिव। 9 पॉइंट, पुश फॉर टूरिज्म एंड सर्विसेज विद प्लान्स टू बूस्ट मेडिकल वैल्यू टूरिज्म एंड एलिट सर्विसेज। पुश दिया गया हमारे टूरिज्म और सर्विसेज में विद प्लान्स टू बूस्ट, मतलब हमारी मेडिकल और उसकी वैल्यू टूरिज्म को और एलिट सर्विसेज को भी बूस्ट मिले। 10 पॉइंट, ब्रॉड रिफॉर्म अक्रॉस MSMEs इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन डेवलपमेंट एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर। जो ब्रॉड रिफॉर्म किया गया है मतलब अक्रॉस माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, अर्बन डेवलपमेंट में और ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स में। व्हाट इट मीन्स फॉर पीपल, कॉमन टैक्स पेयर, नो डायरेक्ट टैक्स कट, मतलब कोई भी डायरेक्ट टैक्स में कट नहीं किया गया है, बट कंप्लायंस सिंप्लीफाइड अंडर न्यू टैक्स लॉ। पर जो हमारे न्यू टैक्स लॉ आए हैं उनमें कुछ सिंप्लीफाई किया गया है। वर्कर एंड यूथ, फोकस ऑन जॉब्स वाया कैपेक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट। वर्कर और यूथ पे भी फोकस किया गया है, मेनली ऑन जॉब्स वाया थ्रू कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट। Next, farmers and rural economy, continued attention on agriculture growth and elite sector. And next, investor and markets, reform in bond markets, STT changes and incentive for strategic industries.